Hello everyone, good day to all of you. My dear children, this is a test series third conducted on 26th Feb. In this we will discuss questions from 1012 to that is 150 portions of botany, test 3, right? We have to start it right now. The pattern will remain same. Questions are not at all difficult, but even then, if you feel in main examination some sort of difficulty is there and you are not able to solve it at once, then you can skip it easily, and in second round definitely you can do it, right? So we have to start it. Question number 101. Yes, you can read out. Select features. Trichome in suit, that is system. Trichome, you all are familiar with trichome. What happens in trichome? Yes, come on. Yes, trichome, you know that this is the outermost, that is layer known as epidermis. Here it may have that is cuticle also, and that is some of the that is epidermal cell, they will come out in the form of that is multicellular, that is shoot hair. These are called multicellular shoot hair. So usually it cannot be unicelled. Usually never it is unicelled. Unicelled root hairs are unicelled. They may be branched or unbranched, may be secretory, may be soft or stiff, and help against that is transpiration. We have to find out of this which one is correct. Definitely you can tell me. That is all are except A, all except A. This is wrong. That is the right answer for this. Clear hogi baat beta? Come to the next. Question number 102. Axillary bud is constituted by cells left behind. That is, you know, जैसे this is मेरिस्टेम मैंने बनाया है यहाँ पर. This is apical meristem. When this apical meristem was here at this place, some of the meristematic cells are left behind and they will develop into that is axillary bud. Axillary bud that will be in the axis of that is leaf. So axillary bud is always develops from that is shoot apical meristem. Clear? Okay, come to the next point. That is question number 103. We have to come. Secondary meristem can be called as secondary meristem. यदि मैं बनाता हूँ इस सेक्शन को ऐसे, let this is that is section of this secondary meristem. It lies here. It may be the cork cambium here, or it may be that is even vascular cambium में ये जो cambium बनती है vascular cambium में, that is this is secondary meristem. The part of cambium which is in between the vascular bundle or core cambium, these are secondary meristem because these are on lateral side and these are cylindrical also. जैसे एक ग्लास के अंदर छोटे डायमीटर का ग्लास हम रख देते हैं तो that will become secondary meristem, that will become vascular cambium, or that will become that is cork cambium. Are you getting my point? तो इसमें secondary meristem can be called as lateral meristem भी इसको कह सकते हैं हम, और इसको cylindrical meristem भी कह सकते हैं. Is it right? तो right answer of this will be, which one will be? That will be the, this will be the right answer. Is it okay? You have to remember it. You have not to that is tick all these. That is fourth will be the right answer. Okay. Come to the next 104. Colon-chyma cells. Everyone knows colon-chyma cell. These are the living cells. These are living cells. What happens? That the corners they have become thickened. That is irregular thickening. The cells are thickened at the corner, and this thickening is because of cellulose, pectin, hemicellulose. सबके लिए the right answer of this will be that is all of these pectic substances that provides that is elastic strength, and it is found, you all know, dicot stem की hypodermis में usually होता है. Come to the next 105. In a naked seeded plant, we are talking about that is gymnosperm. Is it right, beta? We are talking about gymnosperm, which is the chief water conducting element. Vessels तो उसमें होती ही नहीं है. This cannot conduct water. It cannot conduct water. So the right answer of this will be that is tracheids.
ट्रैकिड्स ही जिम्नोस्पर्म में, इन जिम्नोस्पर्म एज वेल एज इन टेरिडोफाइट। रिमेंबर, गुड क्वेश्चन, टेरिडोफाइट दोनों में चीफ कंडक्टिंग वेसल्स क्या होती हैं? चीफ कंडक्टिंग टिश्यू दैट इज ट्रैकिड्स होता है। लेकिन एक क्वेश्चन कभी कभी आता है, एंजियोस्पर्म में भी ट्रैकिड्स होती हैं, बट मेन कंडक्टिंग पार्ट दैट विल बी वेसल एंड देन दिस इज ट्रैकिड। ओके, राइट आंसर मैंने बताया आपको। कम टू द नेक्स्ट नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ फ्लोएम इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। यू नो, फ्लोएम के अंदर 4 कंपोनेंट होते हैं। यूजुअली मैं तो ऐसे बताता हूँ इसको, दैट इज वन इज दैट इज सिव ट्यूब एलिमेंट, इज इट? द सेकेंड वन इज these are बोलो बेटा companion cells are there. The third one is that is phloem parenchyma is there, and the fourth one is that is phloem fiber is there. How you have to remember? Out of these phloem के अंदर ज़्यादातर टिश्यू जो है लिविंग टिश्यू होते हैं. All these are living. Only the phloem fiber is that one is non-living one. A related question in the same way. इफ़ यू थिंक अबाउट जाइलम, तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लोएम जो है ज़्यादा मैकेनिकल सपोर्ट नहीं देता प्लांट को, क्योंकि इसके अंदर तो एक ही टिश्यू है फ्लोएम फाइबर जो कि थिक वॉल्ड होता है. जाइलम के अंदर इसके अलावा दैट इज जाइलम वेसल्स आर देयर, जाइलम ट्रैकिड्स आर देयर, जाइलम फाइबर्स आर देयर एंड जाइलम पैरेन्काइम आर देयर. आउट ऑफ दिस दैट इज दीज आर नॉन लिविंग वन, थिक वॉल्ड टिश्यू दीज आर, एंड दिस इज द ओनली लिविंग वन. रिलेटेड क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है. ठीक है, ओके. कम टू द नेक्स्ट. बोलीफॉर्म सेल्स आर फाउंड इन डाइकोट लीफ के अंदर नहीं होती है बोलीफॉर्म सेल्स. अडक्शियल सरफेस ऑफ ग्रास लीफ, आपको पता है दीज आर दी सेल्स. सम ऑफ दी सेल्स दे हैव बिकम दैट इज लार्ज एंड लार्ज सेल्स, दीज आर अडक्शियल सरफेस के ऊपर होती है. यहाँ थोड़ा सा करेक्शन हम कर लेंगे. डाइकोट लीफ की बजाय ये यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर डाइकोट लीफ द्विबीज पत्री पे ही आएगा, इसमें करेक्शन. तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दैट इज एट अडक्शियल सरफेस ग्रासेस की ये होता है. क्लियर होगी बात. फंक्शन इनका क्या है? दे विल व्हेन द दैट इज डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इज देयर, वाटर स्कैरसिटी इज देयर, देन व्हाट दे विल डू, दे विल दैट इज रोल अप द लीव्स इनसाइड, इनवर्ड रोलिंग हो जाता है जिससे स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं. क्लोज मीन्स सरफेस उनकी बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं रहती है, एंड दे विल रिड्यूस द दैट इज लॉस ऑफ वाटर. क्लियर बात. कम टू द नेक्स्ट नाउ. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. बताइए, एक एक बताइए. वेसल्स क्या होती हैं? लार्ज सेंट्रल कैविटी होती है, यू नो. ट्रैकिड्स के टेपरिंग एंड होते हैं. स्क्लेराइट, दीज आर स्पेशल पैरेन्काइमेटस सेल विद दैट इज स्क्लेराइट्स, तो क्या होती है? वेरी नैरो कैविटी होती है. एंड कंपेनियन सेल्स दीज आर फाउंड इन दैट इज फ्लोएम के अंदर होती हैं. स्पेशल लिटिल बिट थिक वॉल्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं. यू कैन फाइंड आउट आंसर ऑफ दिस, दैट विल बी द सेकेंड वन इज हियर. इज इट राइट? ए का सेकेंड आपने बना लिया. ऐसे क्वेश्चंस को मैंने आपको अटेम्प्ट करने के लिए थोड़ा सा टिप भी दिया है. कैसे कि जो आपको 100% श्योर है उनको तो मिलान कीजिएगा, फिर एक दो रह जाता है, यू कैन दैट इज डू दैट आल्सो. राइट. तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दिस वन. कम टू द नेक्स्ट. In a dicot root, vascular cambium is only primary origin. Dicot root की हम बात कर रहे हैं. Remember this thing. Dicot root में क्या होता है बेटा? मैंने dicot root बनाया है, जैसे ये मान लिया एंडोडर्म मैंने बनाई है. These are, this is the xylem. प्राइमरी जाइलम मैंने बनाया like this. एक्सार जाइलम होता है. This one is phloem. Is it right? तो आपको पता है इसमें वैस्कुलर कैम्बियम बनती है. वैस्कुलर कैम्बियम प्राइमरी तो होती नहीं है, शुरू से नहीं होती है. वैस्कुलर कैम्बियम इज ऑलवेज सेकेंडरी. यहाँ जो वैस्कुलर कैम्बियम बनेगी, दिस वन दैट विल आल्सो बी सेकेंडरी इन ओरिजिन, एंड दिस विल दैट विल आल्सो बी सेकेंडरी. इस तरह से एक वेवी कैम्बियम रिंग बनेगा लाइक दिस, एंड दैट दिस विल बी द सेकेंडरी इन ओरिजिन. क्लियर. कम टू द नेक्स्ट. रेफर स्टेटमेंट ए एंड बी. मोनोकोट लीफ, स्टोमेटा इक्वली नंबर ऑन, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल स्टेटमेंट ठीक है मोनोकोट लीफ में. एंड बार्क इज फॉर्म्ड अर्ली इन सीजन कार्ड सॉफ्ट बार्क, और अर्ली बार्क भी इसको हम कहते हैं. दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है. राइट आंसर ऑफ दिस विल बी विच वन? दैट इज थर्ड विल बी द राइट आंसर. बोथ आर करेक्ट. ओके. कम टू द नेक्स्ट. रीड आउट करें जरा सा इस क्वेश्चन को.
111 क्वेश्चन को आप रीड आउट करें, क्या आएगा बोलिएगा। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, प्लांट हैव डिफरेंट काइंड ऑफ मेरिस्टेम, बोलिए बिल्कुल ठीक है। एपिकल मेरिस्टेम occurs at the tip of roots, no problem. Plant tissue are classified into two main groups, meristematic and permanent tissue. What should be the right answer? Right answer is this one. सभी तो ठीक है इसमें बराबर, उपरोक्त सभी ठीक हैं, सभी प्रकार के टिश्यूज प्लांट के अंदर होते हैं। चूज द करेक्ट मैच, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमेटस इन मोनोकॉट स्टेम, बिल्कुल ठीक है। हाँ, मोनोकॉट स्टेम में क्या होता है बेटा, केवल हाइपोडर्मिस ही तो होती है ग्राउंड टिश्यू में, और तो डिफरेंट, ये क्या है, दीज आर दी वेस्कुलर बंडल, कैसे वेस्कुलर बंडल हैं, द जाइलम इज एंडार्च एंड दीज आर स्कैटर्ड एंड दैट इज बड़े वेस्कुलर बंडल बीच में होते हैं। दिस इज स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, राइट। एंडोडर्मिस मल्टी लेयर्ड एंड पैरेन्काइमेटस इन मोनोकॉट स्टेम, होती ही नहीं है एंडोडर्मिस तो उसमें बेटा। पिथ लार्ज इन डाइकॉट रूट, नहीं होता है। एपिब्लेमा लीफ डर्मिस, एपिब्लेमा तो हम किसको बोलते हैं, लीफ एपिडर्मिस को थोड़ी बोलते हैं, यूजुअली रूट एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा कहते हैं। तो करेक्ट मैच क्या हुआ, करेक्ट मैच इज ओनली वन, दैट इज नंबर 1। इज इट राइट? कम टू द नेक्स्ट थर्ड, दैट इज 13 सिंपल टिश्यूज मेड अप ऑफ सेल्स विच आर, बोलिए सिंपल टिश्यूज, you know, permanent tissue is of two type, simple tissues, बोलिए permanent tissue, this is of two type, one is that is simple tissue, another is that is known as complex tissue। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, याद है आपको। simple tissues similar in function, dissimilar in structure, बोलिए similar in structure and function are only of one type, ये ठीक हो सकता है और ये भी ठीक है। सिमिलर इन फंक्शन होता है लेकिन डिसिमिलर इन स्ट्रक्चर होंगे तो वो क्या हो जाएगा, दैट विल बिकम कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दैट इज दिस फोर्थ वन। कम टू द नेक्स्ट नाउ, द टिश्यू विच फॉर्म मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट ऑर्गन, बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। दिस इज पैरेन्काइमा विच मेक द बल्क ऑफ प्लांट टिश्यू, बल्क आप देख सकते हैं, कोई भी मैं प्लांट बनाता हूँ, कोई सेक्शन कट करते हैं, देखिए ये मैंने बनाया, दिस इज़ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस भी पैरेन्काइमेटस होती है। उसके बाद में हाइपोडर्मिस को चलिए छोड़ दीजिएगा, फिर ये क्या हुआ, दिस इज़ एंडोडर्मिस, ये क्या है, दिस इज़ कॉर्टेक्स, पैरेन्काइमेटस होता है। यहाँ पर पिथ में बनाता हूँ, दिस इज आल्सो पैरेन्काइमेटस होता है। जाइलम के अंदर भी पैरेन्काइमा होता है और फ्लोएम के अंदर भी। तो बल्क ऑफ द टिश्यू इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा, राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दिस वन। ठीक है, पैरेन्काइमा की बात हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े जरा सा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म। इससे पहले भी एक बार क्वेश्चन आया था, कौन सा बोलिए। हाँ, ये तो होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, केवल कौन सा नहीं होता है, हाँ, विच इज़ एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म, ये नहीं होता है। देयरफॉर द राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दिस वन। ये तो देखिए ध्यान रखना है आपको, ये आंसर नहीं है, वो जो पूछ रहा है वी हैव टू गो फॉर दिस। दिस राइट आंसर ऑफ दिस विल बी जाइलम बेसिस जिम्नोस्पर्म में या टेरिडोफाइट्स में नहीं होते हैं। वी हैव टू लीव द एक्सेप्शन हियर, रिमेंबर दिस थिंग। ठीक, बहुत सारे ऐसे भी जिम्नोस्पर्म हो जाते हैं, एडवांस जिम्नोस्पर्म, जिसमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ वेसल्स बन जाती है। वी हैव नॉट टू बॉदर फॉर दिस। 116 पर आ जाइए, पढ़िए ज़रा सा अच्छी तरह से। प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम हैज़, प्रोटोजाइलम एंड प्रोटोफ्लोयम एंड मेटाफ्लोयम। देखिए कैसे बनाते हैं हम, जैसे ये मैंने बनाया फ्लोयम, तो यहाँ पर क्या होगा बेटा, फ्लोयम के अंदर जिसकी सीव ट्यूब की वेसल्स जो है थोड़ी सी नैरो होंगी, दैट विल बी कॉल्ड एज प्रोटोफ्लोयम। जिसमें सीव ट्यूब की दैट इज वेसल्स लार्जर होंगी, दैट विल बी कॉल्ड एज मेटाफ्लोयम। द सेम थिंग हैपन इन दैट इज जाइलम आल्सो। दिस इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम बिकॉज द हियर, यहाँ हमने सीव ट्यूब की बात किया, यहाँ हम जाइलम वेसल्स की बात करेंगे। यहाँ पर जाइलम वेसल्स के डायमीटर जब बड़े होंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज मेटाजाइलम, एंड इफ द डायमीटर ऑफ जाइलम वेसल इज कॉल्ड नैरो, दैट इज कॉल्ड प्रोटोजाइलम। द सेम सिमिलर टर्म वी हैव इन केस ऑफ, दैट इज राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दिस वन। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट 17 जाइलम एंड फ्लोएम अरेंज्ड इन एन
alternate manner in different radii the arrangement is called xylem and phloem। अभी मैंने बात बताई थी are arranged, ये हो गया हमारा, ये एक रेडियस हो गया, यहाँ पर हो गया that is xylem, is it right? एक रेडियस पर, alternate पर क्या हो गया, that is phloem हो गया। तो this type of vascular bundle is called radial and you know radial vascular bundle is found in roots के अंदर होता है, चाहे वो डाइकॉट रूट हो चाहे वो मोनोकॉट रूट हो। ओके, कम टू द नेक्स्ट। यस, थ्योरी से बहुत सिंपल सा पेपर होता है और टॉपिक भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है। दैट इज़ 118 क्वेश्चन और आप आ जाइए, रीड आउट करें इसको ज़रा सा। पैरेन्काइमा विच पासिस थ्रू सेकेंडरी जाइलम, देखिए सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, ये वेस्कुलर कैम्बियम है, ठीक। वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर ये मैंने क्या बना दिया बेटा, लेट दिस इज दैट, लेट दिस वन इज सेकेंडरी जाइलम हो गया, दिस इज सेकेंडरी जाइलम, राइट, बनाते हैं ना इस तरह से, सेकेंडरी जाइलम बन गया। इसी तरह से यहाँ मैंने क्या बना दिया, दिस इज, मान लिया बना दिया सेकेंडरी फ्लोएम, ये हो गया क्रस्ट प्राइमरी फ्लोएम, ये हो गया क्रस्ट प्राइमरी फ्लोएम। यहाँ पर हो सकता है इंटेक्ट दैट इज जाइलम। यदि हम डाइकॉट स्टेम की बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के बाद, तो बोलिए सेकेंडरी, दिस इज व्हाट, दिस इज सेकेंडरी जाइलम, दिस इज, बोलो बेटा दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम। इनके बीच में ये जो टिश्यू होता है दिस इज कॉल्ड मेड्यूलरी रे। कौन सा मेड्यूलरी रे, सेकेंडरी मेड्यूलरी रे। दैट पैरेन्काइमा विच पासेस थ्रू सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम इज कॉल्ड सेकेंडरी मेड्यूलरी रे। बहुत सिंपल सी बात है, थोड़ा सा पिक्चराइज कर लेंगे दिमाग में। ड्यू टू continued formation and accumulation of secondary xylem, secondary xylem the only, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फिर से देखिएगा, ये है दैट इज़ वेस्कुलर कैम्बियम, यहाँ पर ये बन रहा है सेकेंडरी जाइलम, कंटिन्यूस बन रहा है। इस सेकेंडरी जाइलम बनने से क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम बनने से क्या होगा, दैट इज़ प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम अलॉन्ग विद द प्राइमरी जाइलम गेट क्रस्ट। प्राइमरी जाइलम तो कभी भी क्रस्ट नहीं होता है, वो तो इंटैक्ट होता है, मेड अप ऑफ हार्ड टिश्यू। प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम, इसके ऊपर जैसे ये मैंने बनाया है, ये क्या हो गया, मान लिया दिस इज सेकेंडरी फ्लोएम, दिस इज आल्सो सेकेंडरी फ्लोएम। इसके बाहर ये क्या था, दैट वाज प्राइमरी फ्लोएम। दोनों ही इसके कंटिन्यूस एडिशन से प्रेशर इज जनरेटेड एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रेशर क्या होगा, सेकेंडरी फ्लोएम एंड दैट इज प्राइमरी एंड secondary phloem gets gradually crushed. Right answer of this will be, ठीक है, पक्का बात। धीरे धीरे प्राथमिक और द्वितीयक फ्लोएम नष्ट हो जाते हैं क्योंकि अंदर से प्रेशर आता है सेकेंडरी जाइलम बनने के कारण। कम टू क्वेश्चन नंबर 120। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अर्ली वुड इज इनकरेक्ट। अर्ली वुड एंड लेट वुड। अर्ली वुड को हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग वुड भी बोलते हैं और ऑटम वुड बोलते हैं, लेट वुड को। बोलिए इसमें क्या होता है, बिल्कुल एनसीईआरटी के डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं। इट हैज़ हायर डेंसिटी देन लेट वुड, ये तो स्टेटमेंट ठीक नहीं है। दैट इज इट हैज़, इसकी डेंसिटी लो होती है, देयरफॉर दिस राइट आंसर विल बी दिस वन। यही राइट आंसर हमारा आ जाएगा यहाँ पर। हार्डवुड एंड सैपवुड आर पार्ट ऑफ, देखिए जैसे हम कोई लॉग वुड ऐसे हम लेते हैं, लेट दिस इज लॉग वुड, तो इसमें क्या होता है, दैट इज आउटर पोर्शन विच इज़ लाइट इन कलर, दैट इज कॉल्ड, दैट इज सैपवुड, एंड दिस इज दैट इज सेंट्रल पोर्शन विच इज डार्क इन कलर, दैट इज नोन एज हार्डवुड। वी नो हार्डवुड ज़्यादा बढ़िया वुड होती है, ज़्यादा ड्यूरेबल होती है, रेजिस्टेंस होती है, दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड इन फर्नीचर। तो क्वेश्चन क्या है, हार्डवुड सैपवुड, बेसिकली दोनों सेकेंडरी जाइलम ही होता है। इसके बाद बहुत थोड़ा सा टिश्यू बच जाता है, सेकेंडरी जाइलम ही किसको कहते हैं। और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। सैपवुड क्या होता है, दिस इज एक्टिव होता है, फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर किसके थ्रू होता है, इसी के थ्रू होता है। और इसका लाइट इन वेट, लाइट इन कलर, डेंसिटी भी कम होती है। सैपवुड ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है इसके अंदर। नेक्स्ट, What is A? You have to find out. This is diagram of, किसका डायग्राम है बोलिएगा, ये डायग्राम है हमारा। देखिए ये पैलिसेड सेल आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, और ये क्या है, दिस इज दैट इज एरेन्काइमा दिखाई दे रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट।
तो सीधी सी बात है, स्टोमेटा नीचे की तरफ होते हैं। ये स्टोमेटा आपको दिखाई दे रहा है। स्टोमेटा जब अंदर खुलता है दैट इज नॉन एज सब स्टोमेटल कैविटी। क्या आ जाएगा? सब स्टोमेटल कैविटी। राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दैट इज सब स्टोमेटल कैविटी। बिल्कुल क्लियर? ओके, सिंपल सी बात। कम टू द नेक्स्ट। Here is a figure of dicot stem has been given, that is identify what is A, what is X. X क्या है बेटा? बोलिए, सीधी सी बात है। ये जिसको मैं अनलाज कर देता हूँ, ये वेस्कुलर बंडल है। ये क्या है? दिस इज दैट इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है। दिस इज प्राइमरी फ्लोएम, दिस इज प्राइमरी जाइलम। तो X क्या है? X का आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज प्राइमरी फ्लोएम है। ओके, कम टू द नेक्स्ट। Select the incorrect statement in the following. बोलो, open, conjoint, collateral, bicollateral vascular bundle are found in monocot stem. देखिए, open की बात है, बेसिक बात आपको पता है। देखिए, यदि मैं बात करूं बेटा, स्टेम के अंदर वैस्कुलर बंडल कैसा होता है? स्टेम के अंदर वैस्कुलर बंडल ऐसा होता है। फ्लोएम और जाइलम दोनों एक ही रेडियस पर जुड़े होते हैं। कॉन्जेंट वेस्कुलर बंडल होता है। और जाइलम कैसा होता है? जाइलम इज एंडार्च होता है, राइट। जबकि रूट में क्या होता है? रूट में वेस्कुलर बंडल कैसा होता है? रूट में वेस्कुलर बंडल होते हैं इस तरह के, यू नो इट, दैट इज दिस वन इज, यहाँ पर जाइलम और यहाँ पर ये हो गया फ्लोएम। तो दिस वेस्कुलर बंडल इज कॉल्ड रेडियल वेस्कुलर बंडल। ये तो बात आपको याद है ही बराबर। अब आपने देखना है, स्टेम है तो मोनोकोट स्टेम के अंदर क्या होगा? मोनोकोट स्टेम के अंदर कैम्बियम नहीं होती है। वेस्कुलर बंडल विल बी क्लोज्ड, while in case of dicot stem vascular bundle will be open. Open means presence of open vascular bundle will be in dicot stem. Can you identify easily open and monocot stem? Open vascular bundle तो monocot stem में नहीं होते। इनकरेक्ट हमने देखना है। All the tissues पढ़ लीजिएगा ज़रा सा हिंदी इंग्लिश में। 124 अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए मैंने आपको समझा तो दिया है। तो all tissues on the inner side of endodermis। देखिए दिस क्वेश्चन को, all tissues ये है, दैट इज दिस इज, व्हाट इज दिस इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर जो भी टिश्यू होता है, दिस इज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर क्या होगा? दिस इज पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के बाद में बोलिए क्या आएगा? ये दैट विल बी, ये पेरिसाइकिल मैंने बना दिया, दैट विल बी द प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी जाइलम और पिथ, ऑल दिस। तो एवरीथिंग इनसाइड द एंडोडर्मिस इज कॉल्ड स्टील। स्टील लिखा है, स्टील, इंपॉर्टेंट बात है। ये तो ठीक है। आपको क्या देखना है यहाँ पर? इनकरेक्ट। तो इनकरेक्ट तो यही हो गया, और बिल्कुल श्योर हैं आप, एक ही आंसर इसमें आना है इनकरेक्ट, और तो ऑप्शन दिया नहीं। तो दैट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस। क्लियर हुई बात बेटा? कम टू द नेक्स्ट। Large number of vascular bundle found in monocot stem is surrounded by sclerenchymatous। बोलो, बंडल शीथ होता है sclerenchymatous बंडल शीथ। किसके अंदर हम बात कर रहे हैं? मोनोकोट स्टेम। मोनोकोट स्टेम का जो वेस्कुलर बंडल है, स्टेम है, तो जाइलम तो कैसा होगा? जाइलम होगा एंडार्च। एंडार्च मीन्स, एंडार्च से क्या मतलब है हमारा? यहाँ पर दैट इज लार्जर वेसल्स होंगे, और ये हो जाएगा फ्लोएम, क्लोज्ड होगा, और इट इज सराउंडेड बाय ए बंडल शीथ। बंडल शीथ किसका होता है? स्क्लेरेंकाइमेटस बंडल शीथ। कम टू द नेक्स्ट नाउ। चीफ वाटर कंटेनिंग कैविटी। वाटर कंटेनिंग कैविटी इज प्रेजेंट वेयर? ओनली इन मोनोकोट स्टेम के अंदर होती है। मोनोकोट स्टेम का ये जैसे वेस्कुलर बंडल मैंने बनाया, यूजुअली इसका जाइलम जो है दिस इज कैसा होता है? दिस इज वी शेप्ड होता है, और यहाँ पर इसमें होते हैं वाटर कंटेनिंग दैट इज कैपेसिटी, वाटर कंटेनिंग दैट इज कैविटीज देयर। मोनोकोट स्टेम ये क्या हो गया? दैट विल बी फ्लोएम, दैट विल बी जाइलम, एंड दिस इज द बंडल शीथ। यू हैव टू रिमेंबर इट, राइट बेटा? तो दैट राइट आंसर ऑफ दिस विल मोनोकोट स्टेम। देन कम टू दिस नेक्स्ट। 127 की हम बात करें। यस, पैलिसेड पेरेन्काइम इज एब्सेंट इन लीफ। देखिए ये मोनोकोट प्लांट होता है, ये दिस इज डाइकोट, दिस इज डाइकोट, दिस इज डाइकोट। तो पैलिसेड का डिफ्रेंशिएशन किस में होता है?
that is mesophil or ground tissue differentiated only in dicot leaf. ये डाइकॉट लीफ होता है. अपर एपिडर्मिस के नीचे क्या होता है, पैलिसैड होता है, और इसके बीच में क्या होता है, एरनकाइमा होता है. तो राइट आंसर एब्सेंट की हम बात कर रहे हैं. राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दिस वन. ओके, कम टू द नेक्स्ट. Phylum and phyllogen. Phylum and phyllogen. Remember this thing? Phylum. This is the cork cambium. What is this? This one is cork cambium, right? Cork cambium. Cork cambium को हम क्या कहते हैं? The other name of the cork cambium is, this other name is, that is phyllogen भी कहते हैं. क्या कहते हैं? Phyllogen. Cork cambium सेल बनाएगी यहाँ पर like this. आउटसाइड में बनाता है, that makes, that is cork. कॉर्क को हम क्या कहते हैं बेटा? फैलम भी कहते हैं. हाँ, और अंदर की तरफ बनाता है, दैट इज सेकेंडरी कॉर्टेक्स कट, दैट इज सेकेंडरी. यस, इट मेक्स सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है. और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को हम क्या कहते हैं? फैलोडर्म भी कहते हैं. तो ये टर्म जरा सी आप याद कर लेंगे. तो फैलम, फैलम क्या हुआ? कॉर्क. फैलम इज कॉर्क एंड फैलोजन इज कॉर्क कैम्बियम. That is where we have cork and cork cambium. Right answer will be this. 128 का right answer. Clear हुई बात? Okay, come to this. Winter the cambium is less active and forms fewer xylary elements, have narrow vessels. क्या कहेंगे? देखिए, विंटर सीजन की वुड को तो वैसे भी क्या कहते हैं? लेट वुड भी कहते हैं और ऑटम वुड भी कहते हैं. लेट वुड एंड ऑटम वुड, दैट इज, दिस इज कॉल्ड. दिस भी ठीक है, ये भी ठीक है. तो राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दिस वन. विंटर सीजन में, हाँ, विंटर सीजन द वुड इज कॉल्ड लेट वुड, ऑटम वुड. और उसमें क्लियर भी पढ़ा हुआ है अपने अच्छी तरह से. डायरेक्ट क्वेश्चन है. कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड ऑल दिस टुगेदर इज नोन एज पेरिडर्म. इनको कहते हैं कॉर्क कैम्बियम. ये हुआ, दिस इज कॉर्क कैम्बियम. ये क्या हुआ? सेकेंडरी कॉर्टेक्स. ये क्या हुआ? दिस इज कॉर्क. तीनों को मिला करके क्या कहते हैं? दिस इज आल्सो कॉल्ड पेरिडर्म भी इसको कहते हैं. राइट, इट इज आल्सो नोन एज पेरिडर्म. क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. सेमी-ल्यूनर पैचेस ऑफ सेकेंडरी ऑफ स्क्लेरेंकाइमा आर फाउंड इन. सेमी-ल्यूनर पैचेस किसके होते हैं? पेरिसाइकिल के होते हैं. इट इज फाउंड इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम. आई कैन मेक इट दैट दिस इज द एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस के नीचे दीज आर semi-lunar patches. These are semi-lunar patches below which the vascular bundles are present. So semi-lunar patches, these are of, that is pericycle, right? And here that will be the phloem, that will be the xylem. That will be right answer. Okay, come to the next. Secondary growth occurs in most of the dicotyledonous root and stem, and it increase the girth or diameter of the organ because of the activity of. सेकेंडरी ग्रोथ की बात कर रहे हैं. ये सेकेंडरी ग्रोथ का मैंने सेक्शन बनाया है यहाँ पर. ये बीच में बाहर क्या होगा? दैट इज़ वेस्कुलर कैम्बियम, तो अंदर होती है. दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ कॉर्क कैम्बियम. और एंडोडर्मिस के अंदर क्या होती है? दिस इज़ वेस्कुलर कैम्बियम. दोनों ही सेल्स कट करती है अंदर और बाहर की ओर. इज इट राइट? देयरफॉर द थिकनेस विल इंक्रीज. दैट इज़ वेस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम. राइट आंसर ऑफ दिस विल बी दिस वन. ओके, कम टू द नेक्स्ट. मैच्योर सेल रिजल्ट्स ड्यू टू डिवीज़न ऑफ. चाहे प्राइमरी मेरिस्टेम हो चाहे सेकेंडरी मेरिस्टेम हो. यू सी दैट इज, दिस इज द प्राइमरी मेरिस्टेम. द सेल विल डिवाइड, विल गेट मैच्योरिटी. ये अभी मैंने बात किया. ये जैसे कॉर्क कैम्बियम है या वेस्कुलर कैम्बियम है. द सेल्स विल बी फॉर्म्ड एंड दे विल गेट मैच्योर. दिस इज प्राइमरी मेरिस्टेम, दिस इज सेकेंडरी मेरिस्टेम. तो क्वेश्चन है आपका, मैच्योर सेल्स रिजल्ट्स ड्यू टू डिवीजन ऑफ primary as well as secondary meristem. Okay, come to the next. Sclerenchyma fibers are sclerenchymus. These are sclerenchymatous fiber, very long. There, that is cell wall is very thick, and that is hardly, that is very little lumen is left. They will provide, that is mechanical support. You can go for the answer. Sclerenchyma fibers are हाईली लिग्निफाइड. ल्यूमन ग्रेटली इंक्रीज. लिग्निफाइड तो है, ठीक है, बट दिस पोर्शन इज नॉट. ल्यूमन इज ग्रेटली इंक्रीज्ड. हाईली एलोंगेटेड सेल. एलोंगेटेड मैंने बताया. फाउंड जनरली सिंगल, नॉट इन ग्रुप. फाउंड एसोसिएटेड विद जाइलम वेसल.
रीड आउट एंड फाइंड आउट द आंसर ऑफ दिस। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसमें। देखिए थोड़ा सा बिल्कुल एग्जैक्टली एनसीईआरटी वर्जन ही है ये। हाँ, आपको इसमें देखना है अलोंगेटेड सेल, ये तो गलत हो गया, मैंने बताया आपको, सिंगल में नहीं होता है। दीज आर फाउंड इन ग्रुप्स, फाउंड एसोसिएटेड विद जाइलम ओनली। क्यों, फ्लोएम के अंदर भी होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। हाँ, हाईली अलोंगेटेड सेल। देखिए बहुत ज़्यादा स्पेशल फीचर नहीं डिफाइन किए इसमें, बहुत सिंपल सी बात है। यू हैव टू रिमेंबर sclerenchymatous are never found in single, these are found in group. So we have to find out right answer for this will be this one. Okay beta. Come the meristem which is intercalated in permanent tissue, everyone knows. मैं बता देता हूँ आपको, जैसे ये मान लिया this is apical meristem है, when this apical meristem was here, some of the cells will be left here and they will be surrounded by permanent tissue from all sides. And this meristem that will remain silent, that will remain silent, that doesn't divide, that will remain latent only at the time of that is need, that will become active. This is called intercalary meristem or intercalated in between the permanent tissue. What it will do, it commonly known as cylindrical meristem, it is primary. क्वेश्चन देखेगा तो प्राइमरी मेरिस्टेम ही तो हो ना ये, दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस एपिकल मेरिस्टेम विच इज लेफ्ट बिहाइंड सम ऑफ द सेल्स, दिस इज प्राइमरी मेरिस्टेम। ओके, कम टू द नेक्स्ट। कोलन काइमा इज प्रेजेंट, मैंने बताया था कोलन काइमा तो केवल किस में होता है, केवल डाइकोट स्टेम के अंदर होता है। ये डाइकोट स्टेम के अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो इसकी हाइपोडर्मिस होती है दैट इज कोलन काइमेटस होती है, वाइल इन केस ऑफ मोनोकोट स्टेम this is dicot stem hypodermis is, you have to remember hypodermis is colon chymatous। इसको थोड़ा सा मैं और हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए ग्राउंड टिश्यू की हम बात, चलिए इसकी ज़रूरत नहीं, पढ़ा हुआ बेसिक चीज़ है। ओके, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू पैरेन्काइमा, बस ये नॉट रिलेटेड टू पैरेन्काइमा, मे बी क्लोजली पैक्ड विद नो इंटरसेलुलर स्पेस, ग्रुप ऑफ द सेल्स मेनली फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, present in all parts of the higher plant except root, they form the main bulk of plant body। कौन सा इसमें not related to है बताइए। yes, you have to find out, read out करें, बहुत सिंपल सा तो क्वेश्चन है। yes, they are present in all parts of higher plants, not related आपने देखना है। देखिए हाँ, ये बड़ा सावधानी से देखना पड़ेगा। इनकरेक्ट क्या है, नॉट रिलेटेड, they are present in all parts of higher plant, all parts except root। रूट में तो कैसे नहीं होता, रूट में भी तो होता है ना, रूट में भी क्या होगा, दैट इज पैरेन्काइमा तो होगा। रूट का जैसे हम डायग्राम बनाते हैं रूट का, तो ये क्या हो गया, दिस इज एपिडर्मिस, एपिब्लेमा हो गया, दिस इज यूनिसेलुलर रूट, दिस इज एंडोडर्मिस हो गया, इसके बीच में क्या होगा, दैट इज कॉर्टेक्स। कैसा होता है, पैरेन्काइमेटस होता है नहीं, तो दैट इज द राइट आंसर। ओके, कम टू द नेक्स्ट। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू ट्रैकिड्स। ट्रैकिड्स कैसी होती है बेटा, ट्रैकिड्स आपको बताया था मैंने, जिम्नोस्पर्म और किसके अंदर, टेरिडोफाइट के अंदर मेन कंडक्टिंग वेसल्स होती हैं। इनकी क्या होती है, दैट इज़ वॉल तो थिक होती है, बट इवन देन ल्यूमेन इज़ लेफ्ट। ल्यूमेन नहीं होगा तो फिर कैसे ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर मिनरल्स होगा। अब इस बेसिस पर आप देख लीजिएगा। सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, दीज आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म बट नॉट इन टेरिडोफाइट। गलत हो गया नहीं, दोनों के अंदर होता है, जिम्नोस्पर्म में भी, और ये तो आंसर इसका हो नहीं सकता, टेरिडोफाइट में भी। द प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट बॉडी, बिल्कुल ठीक है। इनर लेयर शो थिकनिंग ऑफ सुबेरिन एज दे वेरी। लिविंग सेल्स आपको देखना है, सेलेक्ट लिविंग सेल्स विद अबेंडेंट साइटोप्लाज्म एंड विदाउट न्यूक्लियस, ये भी नहीं होता है, लिविंग सेल तो ये नहीं होती हैं। इनर लेयर शो थिकनिंग ऑफ सुबेरिन, सुबेरिन नहीं होता है, लिग्निफाइड होती है। व्हाट इज लेफ्ट, दैट इज लेफ्ट, इज इट, राइट आंसर विल बी दिस वन। कम, विच सेल हेल्प्स इन मेंटेनिंग द प्रेशर, एवरीवन नोज। ये जैसे हम बनाते हैं फ्लोएम के अंदर, दीज आर सीव ट्यूब हमने बनाई, दीज आर सीव प्लेट्स हमने बनाई। So you know the specific feature of these sieve tubes, that is these are living cells in which nucleus is absent. Such a situation is known as enucleated. Remember one very important question, enucleated cell. Enucleated cells means that is
in which the nucleus was present but degenerate in later stage. Example of this is, one example is this, other example is that is human RBC. अब इसको support करने के लिए here we have, these are the companion cells. Companion cells जो हैं, these are with dense cytoplasm, large nucleus, and they will control activity of this. तो this is question. मेंटेनिंग प्रेशर ग्रेडियंट कौन मेंटेन करेगा बेटा? मैं नियर बाय भी आपको बता रहा हूँ. दिस इज वन क्वेश्चन बट यू शुड बी इन पोजिशन टू रेज टू गिव आंसर दैट इज ऑफ सो मैनी रिलेटेड क्वेश्चंस आल्सो. ओके, दैट इज ग्रेटी टेक्सचर सपोटा. सपोटा, डू यू नो सपोटा व्हाट मीन बाय सपोटा? जिसको चीकू हम बोलते हैं ना, चीकू के अंदर या गुआवा के अंदर जब हम खाते हैं ग्रेटी एक्सपीरियंस आता है नहीं, कड़कड़ाहट सी होती है. इट इज़ बिकॉज ऑफ स्क्लेराइड्स. दैट इज सम ऑफ द सेल्स दे हैव बिकम डेड, देयर सेल वॉल हैज़ बिकम वेरी वेरी थिक, ओनली अ लिटिल स्पेस इज लेफ्ट लाइक दिस, जैसे मैंने बनाया यहाँ पर. एंड दिस सेल्स इज नॉन एज स्क्लेरॉइड्स. तो बिकॉज ऑफ स्क्लेरॉइड्स के कारण ही चीकू का कणिका में संरचना उसके पल्प में हमको मिलता है. डाइकॉट रूट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. डाइकॉट रूट समझ लीजिए, ये डाइकॉट रूट कई बार मैंने बना दिया है. ये एंडोडर्मिस हो गया इसका, ये हो गया दैट इज जाइलम हो गया, एंडार्स जाइलम या एक्सार्स जाइलम. एक्सार्स जाइलम होता है, प्रोटोजाइलम बाहर, और ये हो गया यहाँ पर दैट इज़ फ्लोएम. कैम्बियम शुरू से होती नहीं है, कैम्बियम बाद में बनती है, चाहे यहाँ पर कैम्बियम बने और चाहे यहाँ पर कैम्बियम बने. यू कैन रीड आउट. वैस्कुलर कैम्बियम इज इनिशियली सर्कुलर. इनिशियल सर्कुलर कैसे होगा? ये तो सर्कुलर देखिए, ये तो कैसे वेवी कैम्बियम है ना पहले, ये तो यही बात गलत हो गई. ये तो हो नहीं सकता, शुरू में कैसा होगा? वेवी, देन इट विल बिकम सर्कुलर. वैस्कुलर कैम्बियम इज इनिशियली वेवी. यस, ये तो ठीक है, और एक ही ठीक होना है फिर तो. जब 100% यू आर श्योर यू कैन टिक मार्क दिस. वैस्कुलर कैम्बियम इज इनिशियली वेवी. और ऑप्शंस तो है नहीं ना हमारे पास में, पढ़ लीजिए फिर भी. वैस्कुलर कैम्बियम इज सर्कुलर, नो. Vascular cambium formed, that is tissue, no, that cannot be, right. Come to this next. Phallogen, अभी मैंने बता दिया था phallogen को क्या बोलते हैं बेटा. Phallogen is also known as cork cambium. Do you remember what is this? This is cork cambium or phallogen. Outside बनाएगा that is cork, और also known as this is phallum. Repeat कर रहा हूँ उसी क्वेश्चन को, phallum, और this is known as cork. This is called cork cambium or phallogen, and inside that is known as phalloderm or secondary, that is cortex. Clear? Bark refers to all tissues exterior to vascular cambium. Therefore, this is vascular cambium. देखिए vascular cambium हो गया बेटा. कहाँ इसमें गलती होने की संभावना है? नहीं होगा. vascular cambium के inside में क्या होगा? This one is secondary. This one is secondary. What is this? Secondary xylem. अब vascular cambium के बाहर क्या होगा? That will be, what is this? बोलिए, this is secondary phloem. इसके बाद में that will be crust, primary phloem. ये क्या हो जाएगा यहाँ पर? cortex हो गया. all this, तो you can remember it. bark, ये इसके बाहर जितना भी टिश्यू होगा outside the vascular cambium, that is known as bark. Therefore it includes secondary xylem. तो नहीं हो सकता ना इसमें, प्राइमरी जाइलम भी नहीं हो सकता. प्राइमरी जाइलम तो यहाँ पर हो गया, एंड पिथ इसके अंदर आ गया, क्रस्ट हो जाता है. इट इंक्लूड्स ओनली सेकेंडरी फ्लोएम, राइट. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? देखिए फिर से बताइए. फैलोजन डेवलप्स ड्यूरिंग ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम ही डेवलप होता है. सेल्स ऑफ फैलोजन डिफ्रेंशिएट इनटू आउटर फ्लोएम एंड इनर जाइलम. फैलोजन की हम बात कर रहे हैं बेटा. फैलोजन तो कॉर्क कैम्बियम में उससे थोड़ी बनेगा. फ्लोएम, ये जाइलम उससे नहीं बनता. दैट कैन नॉट बी करेक्ट. पेरिडर्म इंक्लूड्स फैलोजन एंड पेरिसाइकिल. कहाँ से आएगा? पेरिसाइकिल नहीं आता है. फैलोजन डेवलप्स यूजुअली इन एपिडर्मल रीजन. एपिडर्मल के नीचे डेवलप होता है. तो राइट आंसर बोलिए क्या होगा? इट डेवलप्स. फैलोजन डेवलप्स ड्यूरिंग ऑन गोइंग प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ. क्लियर? ओके. सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू दैट इज पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम. पेरिफेरल अभी मैंने बताया था एक क्वेश्चन के अंदर. ये जैसे वुड का हमने लॉग देखा ना, लॉग पड़े रहते हैं इस तरह के वुड के कटे हुए. द सेंट्रल पोर्शन आपने देखा होगा, सेंट्रल पोर्शन बड़ा डार्क होता है. दैट इज नोन एज हार्ट वुड. इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? हार्ट वुड.
और बाहर क्या होता है, दैट इज कॉल्ड सैपवुड। क्वेश्चन है सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट पेरिफेरल। इट इज़ लाइटर इन कलर, इनकरेक्ट नहीं, ठीक है। तो इट इज़ नॉन एज हार्टवुड, हार्टवुड तो इसको कहते हैं बेटा, नॉन एज एल्बर्नम, कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। यू कैन फाइंड आउट। बोलिए क्या आंसर आ जाएगा इसका। यू हैव टू सर्च आउट एट योर ऑन, दैट विल बी 145। डिटेल में मैंने बता दिया आपको, पहले भी बता दिया इसको। तो इनकरेक्ट आपने देखना है। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। कैन यू डू इट, बताइए। लाइटर, इनकरेक्ट, बोलिए। इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू पेरिफेरल रीजन ऑफ सेकेंडरी जाइलम। इनकरेक्ट, लाइटर रीजन, नॉन एज हार्टवुड, नॉन एज एल्बर्नम। देखिए मैंने आपको बताया भी था, ये यहाँ देखिए, दिस इज कॉल्ड, दैट इज सैपवुड, दैट इज कॉल्ड हार्टवुड। हार्ट सैपवुड कैसा होता है, दिस इज लाइट इन कलर, दिस इज फिजियोलॉजिकली एक्टिव होता है, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज एल्बर्नम, दिस इज आल्सो नॉन एज ड्यूरामेन। ड्यूरामेन जिसको बहुत दिनों तक चलती है, अच्छी लकड़ी होती है, रेजिस्टेंट होती है, दीमक नहीं लगती है, इंसेक्ट नहीं लगते हैं। दिस इज़ डार्क इन कलर क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे केमिकल। एंड दिस इज़ एक्टिव, दिस इज़ नॉन एक्टिव होता है, इसके अंदर से किसी तरह का ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। इज़ इट राइट? तो राइट आंसर विल बी दिस वन। ओके, कम टू दिस नेक्स्ट। यस, given statement select the correct option. Spring wood is lighter in color, autumn wood is lower density. बहुत बिल्कुल कई बार तो ये क्वेश्चन आ गया आपके पास में, यू कैन गो थ्रू, दैट इज विच वन इज इनकरेक्ट, दैट विल बी, आई विल रीड इट आउट वंस मोर, राइट, दैट इज बी इज ऑटम वुड। ऑटम वुड तो मैंने बताया था ना आपको, ऑटम वुड को हम क्या बोलते हैं, ऑटम वुड इज आल्सो नॉन एज लेट वुड भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, लेट वुड, ऑटम वुड। स्प्रिंग वुड को हम क्या कहते हैं, दैट इज आल्सो नॉन एज अर्ली वुड। लेट, इसमें क्या होता है, दैट इज इसका, यस, बी इज इन ऑटम वुड लोअर डेंसिटी का नहीं होता है। ऑटम वुड जब हम बनाते हैं, वी हैव टू, देखिए डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। ये मैंने बनाया, दिस इज ऑटम वुड। ऑटम वुड की वेसल्स बहुत नैरो होती हैं, लाइक दिस, तो दैट्स वाई दिस इज इनकरेक्ट। इट्स नॉट, डजंट हैव, दैट इज लोअर डेंसिटी इसके अंदर नहीं होती है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द, दैट इज, हाँ, रीड आउट करेक्ट मैच। प्राइमरी ग्रोथ, प्राइमरी ग्रोथ लेटरल मेरिस्टेम से थोड़ी होती है बेटा। हाँ, प्राइमरी ग्रोथ तो किससे होती है, एपिकल मेरिस्टेम से होती है, करेक्ट। सेकेंडरी ग्रोथ एपिक, ये भी ठीक नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इंक्रीज इन गर्थ, कितनी बार क्वेश्चन आ गया है इसी तरह का, इंक्रीज इन गर्थ, वास्कुलर कैम्बियम। हाँ, ये स्टेम है या रूट है, डाइकोट, डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट। जब ये मोटी हो जाती है, गर्थ में इंक्रीज होता है, किसकी वजह से, कोर कैम्बियम की वजह से, या किसकी वजह से, वास्कुलर कैम्बियम की वजह से होता है। राइट आंसर विल बी दिस वन। कम टू द नेक्स्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बुलीफॉर्म सेल्स। बुलीफॉर्म सेल्स मैंने बताया था आपको। पार्ट इनकरेक्ट आपको देखना है, पार्ट ऑफ एडेक्शियल एपिडर्मिस, ठीक है बिल्कुल। सेल्स आर लार्ज, एम्प्टी एंड कलरलेस, दे मेक द लीव्स कर्ल आउटवर्ड, कर्लिंग नहीं होता है, रिमेंबर, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। ये जो लीफ है, ये लीफ इस तरह से बुलीफॉर्म सेल्स की वजह से इनवर्ड कर्लिंग इसका हो जाएगा, सो दैट द स्टोमेटा विल नॉट बी एक्सपोज्ड एंड दैट विल डिक्रीज, ट्रांसपिरेशन की रेट डिक्रीज हो जाती है। दैट विल बी द राइट आंसर। इनकरेक्ट ही आपने देखना बेटा। ओके, कम टू द नेक्स्ट। अमंग द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर, यस, पेरिसाइकिल एज सेमी ल्यूनर पैच ऑफ द स्क्लेरेन्काइमा, ठीक लग रहा है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एंडोडर्मिस इज रेफर्ड टू एज स्टार शीथ, ये भी ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट। करना क्या है, हाउ मैनी करेक्ट विद टी एस ऑफ डाइकॉट स्टेम। कोलनकाइमा हाइपोडर्मिस बिल्कुल ठीक होती है। हाँ, पैर, ये तो गलत है, ये तो होता है इसमें, ये भी ठीक है। तो कितने स्टेटमेंट ठीक हो गए हमारे, पेरिसाइकिल 1, दैट इज स्टासी 2 एंड दिस वन इज 3 स्टेटमेंट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, द लास्ट क्वेश्चन डियर चिल्ड्रन, हाउ मेनी रेडियल वास्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट, दैट इज डाइऑक्टोहेक्सार्च, एवरीवन नोज इट, दिस इज कॉल्ड डाइऑक्टोहेक्सार्च, दैट इज राइट आंसर फॉर दिस। ओके,
So nice of you. Have a good day. Thank you.